What programming tools are you currently using? Let's say I'm a developer and I want to make a change in the Google's website. मैं कर सकता हूँ क्या? When you start, you come to know कि भाई ये चीज नहीं पता है, मेरे को ये चीज नहीं पता है. मुझे लगता था यार बड़ी सही चीज है, ये कर लिया तो भाई पैसा ही पैसा होगा. So basically, how did you even start with GSOC? It's like the whole process of GSOC. So when you talk about coding, what programming tools are you currently using? Because like a lot of people who are watching this probably for the first time, who want to probably build a career in probably web development or software development, they want like they would need a thoda sa context on what do you do, what exactly do you do? Because coding बाहर से बहुत अलग लगता है, and when you actually do it, it's very different. Like it's not just a hello world print करना. So it is, there is much more. So what programming tools do you use, and what do you actually like do in it? Okay, so you're asking what do I do in my job right now? No, what do you do in probably software development or web development, like something like that? And what are the programming tools that you would need to do to get into roles like this? Okay, so let's say you are someone who wants to become good at programming. The step one is to learn a programming language, which is like the easiest one out there. I think is Python because it lets you do things and like really powerful things from writing your own backend service to making a ML model to printing hello world. It helps you make really powerful applications by a very few lines and in a very simple way. So Python is one of the simplest languages out there. Yeah, so you should learn a programming language, and then coding is a very very big field, and there's a lot of things which are like going around, right? So then I think you need to kind of see कि तुम्हारा interest किसमें आता है. Are you excited about when you see websites? Are you excited about अच्छा how does this website work behind the scenes, or how do you actually make stunning designs, or how do you actually make beautiful looking websites or applications? Or let's say whenever you kind of use ChatGPT, are you curious about कि what happens behind the scenes? यार ये कैसे मैं जो भी लिखता हूँ उसको कैसे पता होता है सब कुछ, इवन तो 90% चीजें गलत बोलता है बट फिर भी कैसे बोल कैसे पाता है वो. बट Continue. I love this, man. I love this. Continue. हाँ तो भाई वो बोलता है बट गलत सही बोलता कैसे है, झूठ कैसे बोलता है वो, गद्दारी कैसे करता है तुम्हारे साथ जब तुम्हारा प्रेजेंटेशन होता है और तुम्हें अर्जेंसी चाहिए होती है. बट हाँ तो बेसिकली ये सब चीजें हैं. एंड देन देयर इज लाइक जब तुम देखते हो कि कुछ हैक हो गया, लाइक जैसे मेरे केस में मेरे को जब पहली बार मेरे को हैकिंग का पता चला था वो तब था जब डोमिनोज का डेटाबेस लीक हो गया था. उसमें मैंने देखा था कि भाई मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए डोमिनोज पे. तब मुझे समझ में आता है यार ये तो हैक भी होता है भाई चीजें, तो लीक्स भी होता है. तो इफ यू आर क्यूरियस अबाउट दैट देन देयर इज लाइक साइबर सिक्योरिटी एंड होल लॉट ऑफ वो सब चीजें. मेरा पर्सनली गोल ये है जैसा मैंने बताया कि मेरे को जो भी आइडियाज आते हैं राइट कि यार ये प्रोडक्ट होना चाहिए था मैं इसमें यूज करता. तो बस लोग ये सोच के चुप बस बोलते हैं हाँ यार अगर ये होता तो मैं यूज करता. आई वांट टू टेक माई सेल्फ टू द नेक्स्ट स्टेप कि अच्छा ये प्रोडक्ट अभी नहीं है तो मैं बना दूंगा. आई शुड बी दैट केपेबल. और ये करने के लिए पर्सनली राइट नाउ आई एम अ बैकएंड इंजीनियर इन Navi. तो बेसिकली मेरा काम क्या होता है एज अ बैकएंड इंजीनियर इज जो तुम देखते हो स्क्रीन पे, जो भी तुम जब वेबसाइट करते हो google.com देखते हो तो उसमें जो भी चीजें आती है राइट वॉट एवर ओके दैट माइट नॉट बी गुड एग्जाम्पल. हाँ सो जो भी बिहाइंड द सीन्स होता है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ रेस्टोरेंट राइट आई एम द शेफ ऑफ द रेस्टोरेंट. आई प्रेजेंट यू द डिशेस एंड जो भी वेटर्स हैं वो डिशेस सजा के तो दे देंगे. सो फ्रंट एंड इंडियस करते हैं कि जब भी मैं कोई डिश बना के बेचता हूँ उसके ऊपर टॉपिंग करना, उसके ऊपर थोड़ा उसको अच्छा डालना, तुम्हारे साइड में तुम्हारी बड़ी सी प्लेट में छोटी सी डिश में बचा हुआ जो साइड का खाना वाना होता है सुंदर दिखाने के लिए वो सब करना. और जो खाना होता है जो टेस्टी पार्ट होता है वो मैं करता हूँ. I so yeah, I interact with a lot of databases. I find मतलब data निकाल के देना front end engineers को. Then thinking about कि okay, let's say 1,000 people are using my app. How to make it scale to 10,000 people, 1 lakh people, 10 lakh people. वो सब चीजें भी सोचनी होती है. But as an SD1, right now my job is like very simple कि कोई requirement आई तो उसका देखना कि इस requirement को मैं fulfill करने के लिए क्या changes कर सकता हूँ अपने code base में and वो changes करके दे देना. अभी मुझे as you grow as a software engineer, then the approach towards मतलब writing more scalable code ज़्यादा लोग use कर पाए and वो सब पड़ता है. Yeah, and yeah, that's it. Like coding language सीखो, then देखो कि what are the fields which excite you, whether it is UI UX designing, front end engineering, back end engineering, AI ML, security, and probably like data analysis, data science, field होते हैं. देखो किसमें ज़्यादा interest आ रहा है. There is algo trading also. वो भी मैं I was into algo trading for quite some time because it's an intersection of like finance and coding, right? You make your own trading bots and then you train them on historical data. You make indicators. I have coded indicators.
कौन सा RSI इंडिकेटर कोड किया था, फिर और थोड़े इंडिकेटर्स कोड करे थे, MACD एंड देन यू वगैरह. बैक टेस्ट. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट. देन यू बैक टेस्टेड कि तुम्हारा इंडिकेटर काम का भी है, तुम्हारा कोड काम का भी है या फेंकना है सिर्फ. Hmm. Yeah, that was fun. So yeah, just play around, and you will, I think you will find your love in coding if you follow this path. But in India, doing that for a long time is very difficult because placements and all का pressure आने लगता है एक point के बाद, and then placement वाली चीजें is very different. Like इसके Hmm. लिए it's like a, I would say, a race again. तो Yeah. उस पे आना है तो बाद में भी आ सकते हैं. हाँ, उस पे आएंगे, उस पे वो भी आ रहा है. हाँ हाँ, correct. Yeah. But I really like that you started this because I think the main part is only to start. Once you start, there is a huge possibility of doing everything. Because when you start, you come to know कि भाई ये चीज़ नहीं पता है मेरे को, ये चीज़ नहीं पता है, ओ ये चीज़ आती है. Then जो आती है Correct. उस पे you can develop. जो नहीं आती है वो तू सीख सकता है, जो नहीं आती है दूसरी चीज़ वो भी सीख सकता है. And that is how you grow as a person in that whole field. So I Correct. really like that you shared this part. कि हाँ, एंड एज फार एज आई ऑल्सो, मैंने ये भी किया था कॉलेज में आके. मैंने बताया था ना कि आई वाज इंटरेस्टेड इन रोबोटिक्स, की रोबोट्स कैसे क्या करते हैं, कोडिंग वैसे एनेबल हो रहा है, वो सब चीजें. Hmm. दैट वाज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्रेटोस आल्सो, जिसमें दे आर मेकिंग अ रोवर, अ मार्स रोवर, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है. दैट वाज पार्ट ऑफ द लाइफ डिटेक्शन थिंकिंग. तो उसमें तुम्हें रॉक एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन करना था, लाइक इमेजेस ऑफ रॉक्स उसको ट्रेन करनी थी ताकि वो रोवर आइडेंटिफाई कर पाए, अच्छा दिस इज दैट रॉक, ये रॉक. वो सब भी था, तो उस पार्ट में भी इन्वॉल्व था मैं. सो या. I like, I genuinely like that you said that. And now coming to this whole part of GSOC, which obviously I wanted to talk about. So basically, how did you even start with GSOC? How did GSOC come along your way? Can you just talk about it? Like, how did you participate in it and everything? Like, tell me about the whole journey. GSOC is basically an open source program. Now, what is an open source program? Let's say I'm a developer and I want to make a change in the Google's website. मैं कर सकता हूँ क्या? Hmm. नहीं कर सकता. करेक्ट, बिकॉज उनके पास एक कंपनी है, उनका कोड वहां पर लिखा है, मेरे पास एक्सेस नहीं है उस कोड का. इट्स अ क्लोज्ड, सो इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम, राइट? इट्स अ क्लोज्ड डेवलपमेंट सिस्टम. नाउ देयर आर कंपनीज व्हिच हैव ओपन डेवलपमेंट सिस्टम्स एंड दे आर कॉल्ड ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस. अब क्या होता है, उनका कोड रेडिली गिटहब पे अवेलेबल है, आप बस जाओ सर्च करो, कर सकते हो. उनके कोड पे चेंजेस कर सकते हैं. पाइथन कोड हो गया, आई थिंक Django is also open source, Mozilla Firefox is also open source. ये सब पे आप जाके कोड के चेंजेस कर सकते हो, राइट? सो दोस आर ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस. तो GSOC is also such a program जिसमें आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो, एंड the it is sponsored by Google, so it's like Google Summer of Code, right? So that is the program, and yeah, it's a very sought after program, I would say. और मैं जब फर्स्ट ईयर में था, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि भाई क्या होता है GSOC. तो हमारी बिट्स में एक वो हुई थी सेमिनार जिसमें GSOC के बारे में बताया था. मुझे लगता था यार बड़ी सही चीज है, ये कर लिया तो भाई पैसा ही पैसा होगा, मस्त स्टाइपेंड मिलता था, मस्त इज्जत मिलती थी, मतलब हाँ मिलती है, सॉरी, बट तो ऐसा था यार. एंड दैट वाज द मोटिवेशन, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है. एंड क्या हुआ था, 2020 के अक्टूबर में देयर इज अ थिंग कॉल्ड हैकटोबर फेस्ट. हैकटोबर फेस्ट इज आल्सो एन ओपन सोर्स प्रोग्राम जस्ट लाइक GSOC, but it's of a very small scale. Like you get a free T-shirt if you make 4 contributions. तो वो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा था, मोस्टली फॉर द फ्री T-shirt. आई वाज लाइक हाँ 4 कंट्रीब्यूशन करने हैं, कहीं भी कर दूंगा, T-shirt मिल जाएगी. एंड वो T-shirt मिल गई. उसके बाद बट हाँ, जब मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा था, तो द फैक्ट दैट आई अंडरस्टूड अ बिग कोड बेस, उसको फिर उसमें इसको समझना, उसमें चेंजेस करना, उसको फिक्स करना, उसको डालना, वो उसमें मजा लगा था यार कि अरे यार ये तो काफी अच्छी चीज है, तुम कहीं रैंडमली किसी कोड की प्रॉब्लम फिक्स करके डाल पा रहे हो. So that is basically open source for you. Then I was like, अच्छा तो GSOC में भी ट्राई कर सकते हैं. Worst case if I won't get it, I'll be a better developer. तो क्या ही जाता है. तो फिर मैंने GSOC का, तब मैंने सोचा था कि मैं ट्राई करूंगा, एंड मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है उस पे कि how I cracked GSOC in 6 months. And I think that is like the most viewed video of my channel. It has around what, 111K views. That's like insane. I never thought anyone would be interested in watching an unedited version of that. तो उसमें मैंने पूरा दिखाया है कि कैसे द प्रॉब्लम्स व्हिच आई फेस. क्या मैं सोच रहा था कि छोड़ो भाई, एट सम पॉइंट आई थॉट ऑफ जस्ट क्विटिंग इट बिकॉज़ इट वाज टू टफ. आई वाज नॉट वेरी गुड एट डेवलपमेंट, इफ यू, एज आई मेंशन्ड, राइट? उस टाइम पे आई वाज जस्ट डूइंग दैट, एक्सप्लोरिंग अ बंच ऑफ थिंग्स. आई वाज इनटू ML एंड AI, इमेज डिटेक्शन एंड वो सब चीजें. तो मैं फाइनली करके GSOC हो गया था मेरे से, इन अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सर्किट वर्स. उसमें मेरा एक ML प्रोजेक्ट ही मिला था, तो वो मैंने ओपन सोर्स पूरा कंट्रीब्यूट करके एंड टू एंड डिलीवर कर दिया था. तो GSOC हो गया था मेरा. सो मेरे टाइम पे ओनली स्टूडेंट्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट. आई थिंक अभी थोड़ा चेंज हुआ है, लाइक यू कैन बी अर्ली ऑन इन योर करियर आल्सो, लाइक 0 to 1 year of experience also you can participate. But when I applied in 2021, only students were allowed, right? College going students. But every Now, college student is allowed? yeah, every college student is allowed. Unless your country is like blacklisted by Google or something, because they have a list of countries
उसमें if you are there, India है, and you are allowed there, you are allowed to participate. Hmm. अब how is the process like वो बताता हूँ एक बार. So there are a lot of open source organizations, as I mentioned, right? Everyone who doesn't have enough developers wants to build a good project. They make it open source. ताकि हर कोई use कर पाए, हर कोई improve कर पाए. Everyone knows what's going on. So a lot of open source organizations are out there. Now what Google does is Google picks out a few. तो मान लीजिए 100 open source organizations में से 10 Google shortlist करता है कि हाँ भाई ये 10 मुझे अच्छी लगी है, एंड अपने अपने प्रोग्राम में 10 को इंक्लूड करता है कि हाँ ये 10 ऑर्गेनाइजेशंस अब जीसॉक का पार्ट है. वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, प्रोजेक्ट्स लिस्ट करती हैं. मान लो 10 ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला कि हमें 5 प्रोजेक्ट चाहिए, किसी ने बोला हमें बोला, किसी ने बोला कि हमें 8 प्रोजेक्ट बनाने हैं, किसी ने बोला हमें 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं बस इस समर में. एंड ये समर्स में होता है, लाइक फ्रॉम मे टू अगस्त, लाइक 3-4 मंथ्स. तो सब समर वेकेशंस में ये जीसॉक होता है. Got it. तो उस समर में some organizations wants to make like 5 projects, some organizations wants to make 20 projects also. The bigger the organization, the more people they can manage, the more projects they can build. तो फिर वो अपना प्रोजेक्ट बता देते हैं कि हाँ ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं. सो यू गो टू देयर वेबसाइट, यू सी अच्छा ये प्रोजेक्ट्स हैं, एंड देन यू सी तुम्हारा स्किल सेट किसके साथ मैच हो रहा है. अब तुम्हारा स्किल सेट अगर मैच हो रहा है किसी के साथ, तुम्हें लग रहा है हाँ ये काम करने में मजा आएगा, यू लर्न समथिंग न्यू, तो then you apply to these organizations. Now how do you apply? You make a proposal. You write a proposal जिसमें तुम अपने details and how would you solve that problem for them. वो प्रोजेक्ट तुम्हारे स्किल सेट से कैसे करोगे, लाइक योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट तुम बना के भेजते हो. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं. जितने भी लोग बोलते हैं हाँ हम सॉल्व कर देंगे, दे सिट थ्रू इट and then they shortlist one proposal out of it for a project. So one proposal per project. So वो सारे proposals देखते हैं, and if you get selected, then you are a part of GSOC. So that's like the whole process of GSOC. Now, how would you want? अब वही बात होगी. If you're a contributor काफी पहले से, then the mentors also know you, right? कि भाई ये बंदा काफी टाइम से GSOC हमारी ऑर्गेनाइजेशन में contribute कर रहा है. तो they would prefer you over someone who is just very new and कभी बात नहीं करी, कुछ नहीं करा, ऐसे आके proposal बना दिया. So that also helps. So you need to be a contributor. You need to genuinely improve the code base of that organization. And if the mentor is find merit in you and they trust you, trustworthiness is also very important, because mentor help तो कर ही देता है काफी. Like they won't code for you, coding तुम्हें करनी पड़ेगी, but वो guide वाइड कर देता है तुम्हें. So हाँ, if they trust you and if they think that you can do it, then they select you and फिर तुम GSOC में पार्ट करते हो. And GSOC स्टार्ट होता है मई में. तो मई you actually start coding that project. मतलब होता है कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड होता है बीच में, वो सब ठीक है. But once the GSOC starts, for the next 3 months, you code the project and then deliver it. Now there are a few changes, जैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी हो गए, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी हो गए, तो उसका ड्यूरेशन अलग होता है. बट मेरे टाइम पे तो 3 महीने में, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है, 3 महीने का टाइम था कोड करके खत्म करना था उसको. So yeah, that's GSOC in a nutshell. Got it. And which company did you get, and how was your experience with that company? The organization which I got into was CircuitWorks. It's हमने वो डिजिटल डिजाइन करके कोर्स किया था ना ब्रो, याद है? हाँ, तो डिजिटल डिजाइन में लॉजिसन करके टूल था, लॉजिसन, जिसमें तुम ड्रैग ड्रॉप कर देते. करेक्ट, मेरे को कुछ नहीं आता था भाई वो. CircuitWorks बेसिकली उसको ऑनलाइन करता है. सो there's a website जिसमें तुम वो सेम चीज कर सकते हो, ड्रैग और एंड गेट, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाओ, वो सब चीजें. उसमें मेरा प्रोजेक्ट था रिकमेंडेशन सिस्टम था. सो जैसे YouTube है, भाई लेट्स से इफ यू वांट टू वॉच ओलंपिक का जैवलिन वाला इवेंट, ओके, इन YouTube, तो वो देख के YouTube छोड़ते क्यों नहीं? व्हाई डू यू कीप ऑन वाचिंग YouTube फॉर 5 hours जब तक तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती नहीं है कि लैपटॉप पे बैठे रहते? तो क्यों देखते रहते हो YouTube? Because you kind of go into that algorithm, you get another recommendation and then you click on that also. Yes. क्योंकि वो देखो मतलब और ज्यादा अपीलिंग लगता है. हाँ, exactly. सीख लिया भाई मैंने. तो बेसिकली YouTube का रिकमेंडेशन सिस्टम की वजह से ही रिटेन हो पाते हैं लोग, कि दे वॉच YouTube फॉर सो लॉन्ग बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन सिस्टम, द रिकमेंडेशंस व्हिच यू गेट. अभी ये वीडियो के साइड में रिकमेंडेशन में मत जाना, अभी ये वीडियो देखो, ठीक है? Nice भाई, nice. ठीक है. हाँ, तो रिकमेंडेशन मेरा भी यही काम था. Everyone made circuits out there, like really cool, complicated circuits, but they wanted to increase the retention of users who are actually visiting their website. So they wanted to showcase these good circuits which are made by good projects which are made by other people. I'm sorry to break it down to you, तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा. And that is more
more like it gives you an edge over the other people. DSA is what will get you placed, man. So Hmm. DSA में compromise नहीं करना है. तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि what are the projects that you have made. तो उसमें मैंने GSOC का दिखाया था and he was super impressed. Like